Hello dear students, I am Dr. Sarandote. Welcome to the online classes. Today we are going to discuss the next portion, that is the mass spectrometry part 2. So dear students, in the previous class we already discussed the principle, theory and instrumentation of the mass spectrometer or mass spectrometry. In this lecture we start with the which type of ions are produced in the mass spectrometer. Now the first is the molecular ion or the parent ion. We already know that when the molecule M first is converted into the vapor phase, and then by the bombarding of the high energy electron beam, it gets converted into the ionic form. This is the known as the molecular ion. This is the known as what? Molecular ion, or also known as the parent ion. This molecular ion having the same molecular weight, with that of this compound, which is under study in the mass spectrometer. If suppose minimum amount of energy, that is a 10 to 15 electron volt, इतनी अगर एनर्जी है इलेक्ट्रॉन बीम के पास अगर है, तो सफिशिएंटली दे कैन जनरेट द मॉलिक्यूलर आयन. और अगर सपोज आपने इससे भी ज्यादा एनर्जी अगर सप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर जनरेट किया, then this molecular ion undergo the fragmentation. This molecular ion undergo the fragmentation process. Now, the mass of molecular ion, that is M plus, is identical to the molecular weight of the compound, so that we can calculate the molecular weight of a sample from this the molecular ion peak. Okay, the next type of ion is the base peak. This is the electronic spectrum of the acetone. Okay, the acetone का structure होता है CH3C double bond O CH3. When this acetone is introduced in the mass spectrometer, तो यहाँ पर first it get converted into the molecular ion, and for this molecular ion, these oxygen electrons is ejected. This is a non-bonding electron, so that यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH3C double bond O positive CH3 and plus twice electron. This is the molecular ion. This one is the what? Molecular ion, and mass by charge ratio of this is 58. Is what? 58. Now, this molecular ion, it undergo the various fragmentation process, because we are supplying the energy is between the 10 to 17 electron volt. तो यहाँ पर अभी ये जो बना है आपका molecular ion, it undergo the further, that is the fragmentation process. तो यहाँ पर आपको fragmentation process दो टाइप के मिल सकता है. कौन से टाइप में जा सकता है तो देखेंगे. If suppose it undergo the homolysis, then it gives CH3C triple bond O positive charge plus CH3 free radical. Due to this positive, this is known as what? Acylium ion. And this acylium ion having the M by Z ratio is 43. Now, if suppose this undergo the heterolysis, in case of heterolysis, it gives the CH3 plus free positive, and it gives CH3 CH2O3. Now, due to this free radical, ध्यान में रखना मास स्पेक्ट्रोमीटर में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी की वजह से आपको पीक मिलेगा, उसी की वजह से आपको ऐसे लाइंस मिलेंगे. तो यहाँ पर CH3 की वजह से आपका M by Z रेशियो जो है वो होता है 15. Now, अभी आपके पास ये सब वैल्यूज आ गई, आपके पास स्पेक्ट्रम भी रेडी है, तो किस टाइप से फाइंड आउट करना पड़ता है देखो. इन प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी डिस्कस, जिसका भी M by Z की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो होता है मॉलिक्यूलर पीक. दैट मींस दिस पीक ड्यू टू दिस. ठीक है, वो होता है आपका कौन सा? मॉलिक्यूलर पीक होता है वो. ओके, नाउ ये जो होता है दिस इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर पीक, बिकॉज इसकी देखो M by Z, आपके पास M by Z की वैल्यू कौन सी है? 58 है, 43 है और 15 है.
highest value is 58, so that this is will be corresponding to the what molecular ion. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इन तीनों पीक में तो रिलेटिव इंटेंसिटी जो है वो इस पीक की सबसे ग्रेटर है, और जिसकी भी रिलेटिव इंटेंसिटी सबसे ग्रेटर होती है उसको बोला जाता है बेस पीक। उसको क्या बोला जाता है? बेस पीक। तो यहाँ पर ये जो बेस पीक की वैल्यू जो है इट इज नियरली टू द 43। इट इज कहाँ पर है? इट इज नियरली टू द 43। सो दैट ये किसकी वजह से है? दैट इज एसिलिनियम आयन। ये यहाँ पर ये वैल्यू ये करस्पॉन्डिंग शो करता है। नेक्स्ट वन इज सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है 15, तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी देखो जिसके बाद रिलेटिव अबंडेंस सबसे ग्रेटर होता है वो होता है बेस पीक, एंड फ्रॉम दिस बेस पीक इसको कंसीडर करते हैं 100%, एंड विद दिस रिस्पेक्ट टू द 100% इसका रिलेटिव अबंडेंस होता है 10% होगा, और इसका रिलेटिव अबंडेंस होगा नियरली 22 to 20%. So this is the base peak. Now what is the meaning of a metastable ion? अभी देखो, we already know that this is a neutral molecule. It go to vaporize, then it converted into the molecular ion, and this molecular ion undergo the fragmentation and produces the first daughter ion. This is the M. This is the first daughter ion. Now this daughter ion it undergo the decomposition. ये खुद ही डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद विदाउट सप्लाइंग ऑफ एनर्जी ये खुद ही डिकम्पोज होकर मुझे एक दूसरा आयन मिलेगा, दैट इज M2+, और प्लस इसके साथ मिलेगा मुझे न्यूट्रल फ्रैगमेंट। इसके साथ क्या मिलेगा? मुझे न्यूट्रल फ्रैगमेंट मिलता है। और ये जो होता है, जो डिकम्पोज की वजह से फॉर्म होता है, इसको बोला जाता है मेटास्टेबल आयन। ओके, दिस इज नोन एज व्हाट? मेटास्टेबल आयन। ओके, this is metastable ion which is denoted by small m, and उसके ऊपर होता है asterisk यानी स्टार मार्क होता है, इसको बोला जाता है metastable ion. Next portion we are going to discuss what is the meaning of a fragmentation. आप ज्यादा एनर्जी देते हो मास स्पेक्ट्रोमीटर में, so that molecular ion जो होता है it get further into fragmented. Okay, loosely bounded electrons होते हैं unstable molecular ion. To gain the stability, वो मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? वेरियस बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस में जाता है। तो कौन से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है? तो फर्स्ट वन इज व्हाट? होमोलिसिस। होमोलिसिस बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। नंबर 2 होगा हेट्रोलिसिस बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, या नंबर 3 हो सकता है हेमी हेट्रोलिसिस। हेमी हेट्रोलिसिस वन बाय वन देखते हैं। होमोलिटिक, तो होमोलिटिक बॉन्ड फीचर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट द फ्री रेडिकल। ओके, इट जनरेट व्हाट? द फ्री रेडिकल। इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फीचर में अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ओके, यहाँ पर आपको इट जनरेट्स द कैटायन और अनायन मिल सकता है आपको। ओके, हेमी हेटेरोलिसिस में क्या होता है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज पॉसिबल इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलता है। किस टाइप से होगा? तो देखिए यहाँ पर सपोज A plus B फ्री रेडिकल्स इट गिव्स दिस वन। दिस इज द हेमी हेटेरोलिसिस बॉन्ड ब्रेकिंग। तो दिस इज द फ्रैगमेंटेशन। तो फिर फ्रैगमेंटेशन के कुछ रूल्स भी होते हैं, तो वो रूल्स देखते हैं वन बाय वन। The fragmentation pattern, that is breaking up process of the molecular ion into the smaller ion, उसको बोला जाता है fragment ion or a daughter ion, gives the further informations about the structure of the compound. इसलिए very important होता है। इसमें से सबसे पहला पढ़ेंगे रूल जो होता है, that is the fragmentation adjacent to the branching point. Fragmentation adjacent to branching point. Adjacent to what? The branching point. If suppose when there is a branch in a chain, the large fragmentations occur at the branch point in the chain. Since this leads to the formation of more stable carbocation. We know that the tertiary वाला जो कार्बोकैटायन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ब्रांचिंग में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2-methyl pentane 1 2 3 4 5 2-methyl pentane, सपोज दिस वन CH3। यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी फ्रैगमेंट हो सकते हैं, बट ये फ्रैगमेंट सबसे पहले कहाँ से होगा? फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दैट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा विच इज स्टेबल। ओके, सो मिथिल पेंटेन लॉस क्या क्या कर सकता है?
C3H7 भी लॉस कर सकता है या फिर CH3 को भी लॉस कर सकता है। दैट इज ये वाला भी पोर्शन लॉस हो सकता है या फिर ये वाला पोर्शन भी लॉस हो सकता है या फिर बोथ आर सेम, ये दोनों भी सेम है, बट इज मच लार्जर देन लॉस ऑफ C2H5। ओके, बिकॉज यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है विच वन इज द मोर स्टेबल। ओके, ये अगर ये निकल जाएगा तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा। सो दैट एडजेसेंट टू द ब्रांचिंग पॉइंट का मीनिंग होता है कि जहाँ पर स्टेबिलिटी अगर होती है कंपाउंड की तो वो वाला फ्रेगमेंटेशन इजीली होगा। बी वाला देखते हैं, लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। Loss of small molecules. The small stable molecule like water, CO2, CO can be lost from the molecular ion because ये stable होते हैं। Thus an alcohol के केस में water molecule जल्दी रिमूव हो जाता है एंड इसका जो पीक होता है इट शोज पीक एट 8, that is M/Z, less than peak of what molecular ion। ये नेक्स्ट रूल देखते हैं यहाँ पर, that is elimination via multiple sigma bond rupture, multiple sigma bond rupture, the extractions of a neutral molecule like CO, CH2 double bond CH2, ये जो होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं, they can be eliminated by involving the sigma bond rupture, sigma bond rupture के थ्रू इस टाइप के जनरेट होते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल देखो, डायल्स अल्डर फ्रैगमेंटेशन। फर्स्ट इज डायल्स अल्डर फ्रैगमेंटेशन। इस कंपाउंड के पास देखो इस टाइप से होता है। इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम अगर पास करूंगा विच कंटेन हायर एनर्जी, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज इस टाइप का मिलेगा। ओके, एंड इट अंडरगो रेट्रो डायल्स अल्डर फ्रैगमेंटेशन। ओके, रेट्रो मीन्स व्हाट, इसकी प्रीवियस वाली स्टेप, ये कंपाउंड जिससे बना है वो वाले दो कंपाउंड में स्प्लिट हो जाएगा और आपको यहाँ पर मिलेगा इस टाइप से फ्रैगमेंट, और इसकी वजह से आपको पीक मिलेगा। Yes. This is known as dials under the fragmentation, and M/Z value of the M/Z is 54। इसकी कितनी होती है? 54 होती है। Next one is the rearrangement। Okay, next one is the what? Rearrangement। So rearrangement करके भी the compound containing the hydrogen atom at the positive gamma to a carbonyl shows the relative intense peak with an even M/Z value। This is known as Mac-Lafferty rearrangement। अभी क्या होता है तो देखो यहाँ पर, Mac-Lafferty rearrangement। अभी सपोज मेरे पास इस टाइप का कंपाउंड है, दिस इज द कार्बोनिल। सो दैट कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला होता है अल्फा बीटा। अभी ये जो दो है ये दो गामा है। ओके, बोथ आर गामा। सो कंपाउंड लाइक अल्कीन अल्काइन कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग द गामा हाइड्रोजन्स, ये जो होते हैं ये गामा हाइड्रोजन्स है। अभी ये जो गामा हाइड्रोजन्स जो होते हैं इनकी वजह से क्या होता है तो देखेंगे, गामा हाइड्रोजन विच फ्लेक्सिबल इनफ टू फॉर्म अ 6 मेंबर साइकिल रिंग, ये क्या कर सकते हैं, ये 6 मेंबर साइकिल रिंग फॉर्म कर सकते हैं। तो सो दैट यहाँ पर आपको कंपाउंड कुछ इस टाइप से मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 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 और ये रहा हाइड्रोजन, दिस वन इज द गामा हाइड्रोजन। एंड ड्यू टू दिस इज नोन एज मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोला जाता है, मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट। एंड ड्यू टू दिस यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जो होता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दिस बॉन्ड इज आल्सो ब्रेक। तो यहाँ पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, CH3C C डबल बॉन्ड सॉरी COH C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज
CH2 प्लस डबल बॉन्ड, और इसके वजह से आपको पीक मिलेगा जिसकी m/z की वैल्यू जो होती है वो होती है 58. So these are the rules of what the fragmentation process. Next one is we are going to discuss, the next is applications of the mass spectrometer. The first one is we can determine the molecular formula of aromatic compound. आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन कर सकते हो आप डिफरेंट कंपाउंड की वजह से. अभी आपको मैंने मॉलिक्यूलर पीक बताया, बेस पीक बताया, मॉलिक्यूलर आयन पीक बताया है. विद द हेल्प ऑफ दैट आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो डिटरमाइन कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर m/z इज इक्वल टू 77 अगर होगा तो दैट इंडिकेट द C6H5. लाइक दैट आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट किसी भी इसका पता कर सकते हो. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज to determination of the structure of aliphatic compound. We can determine structure of aliphatic compound. आप aliphatic compound का आप structure भी determine कर सकते हो by using the mass spectrometer. Okay, like that. Next one is the mass spectrometer also explain the rearrangement like the McLafferty retro-diacycler reaction for the structure determination. In the mass spectrometer, minimum amount of the sample is required, so that this technique is most of the use for the determination of structure, for determination of the molecular weight of some inorganic as well as some organic compounds. So यहाँ पर आपका जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है. अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो. सो थैंक यू.